چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے محسن نقوی سے ملاقات غیر معمولی بات نہیں، قیاس سرائیوں سے گریز کیا جائے، گرفتار افراد سے متعلق حکومت سے رابطہ پارٹی پالیسی کا حصہ ہے۔ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پہ قیاس سرائیوں سے پرہیز کریں۔ قیاس ایران سے ریلیٹڈ ایک حد تک چند نکات پہ حکومت کے ساتھ بات کرنا ہماری پالیسی رہی ہے۔ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کسی مذاکرات کی کوئی کڑی نہیں ہے، مذاکرات کس سے کرنے ہیں اور پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہوگا، یہ سارا مینڈیٹ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کے بارے میں جن لوگوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی قیادت میں متحد ہے اور خان صاحب ہی کی سپورٹ اور نامینیشن حاصل ہے سہیل افریدی صاحب کو، اور کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ ایسی ساری قیاس سرائیوں کی اور چمی گوئیوں کی اور باتوں کی میں تردید کرتا ہوں۔ حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے، ہم کسی تجربے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ہم حکومت کو ڈسٹرب نہیں کرتے، حکومت صوبوں کو یکساں مواقع فراہم کرے۔ 28ویں ترمیم چھپ کر نہیں ہوگی، جب سامنے آئے گی تو تحفظات بھی آ جائیں گے۔ بلاول کہہ چکے ہیں جن صوبوں پر اتفاق رائے ہے ان پر اعتراض نہیں۔ حالات میں حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے تاکہ ہم ایکسپیریمنٹس کے متعمل نہیں ہو سکتے، ہم آئین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے اور حکومت سے مطالبہ کہ ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے مگر آپ عوام کو اور تمام صوبوں کو یکساں جو مواقع فراہم کیے۔ اگر کسی کے کوئی تحفظات ہوں گے سامنے جب آ جائیں گے، کوئی چھپا کے تو نہیں ہونا۔ بجٹ جو آنے والا ہے یہی گزارش کروں گا کہ وہ عوام کے لیے کوئی ریلیف پیدا کرے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آیا تھا کہ جن صوبوں پہ اتفاق رائے ہے اس کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جہاں کنسنسس نہیں ہے وہاں کنسنسس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ بھی مطالبہ کروں گا بلدیاتی الیکشن بھی ہونے چاہیے اور ان کا بجٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کام ہے آئین سازی کرنا، ان کا کام نہیں ہے گلیاں نالیاں۔ حکومت بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے پر غور کر رہی ہے، ایسی تجاویز زیر غور ہیں جس سے بڑے پیمانے پر عوام کو ریلیف دیا جائے۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی دانشمندانہ کوششوں نے پوری قوم کو سرخرو کیا۔ جو آنے والا بجٹ ہے بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ وہ اس کا لحاظ رکھا جائے۔ بجٹ میں ایسی تجاویز زیر غور ہیں جس سے بڑے پیمانے پہ عوام کو ریلیف مہیا کیا جائے۔ آج پوری دنیا میں پاکستان ایک امن کے پاسدار کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اپنی دانشمندانہ کوششوں سے پوری قوم کو سرخرو کیا ہے۔ رائے بھٹو کے افتتاح کے بعد ایک جماعت نے کہا صوبہ تو میرا سوال ہے برابر والے صوبے میں تو بلدیاتی نظام ہی نہیں، وہاں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا مخالفین پر طنز آوار، کہا دوہرا معیار اور منافقت نہیں کرنی چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق تمام اداروں کے پاس اختیارات موجود ہیں۔ جس دن آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے شارع بھٹو کا افتتاح کیا، دوسرے دن ایک جماعت نے بولا کہ جی صوبے کو توڑ دو، الگ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، آپ کو سہولت بھی اچھی نہیں لگتی۔ برابر میں نے کہا کہ وہ جس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایک صوبے میں بلدیاتی نظام ہی نہیں تو وہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ وہ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ یہاں پہ آپ کو جو ہے ڈبل اسٹینڈرڈز کہتے ہیں، یہ منافقت نہ کریں سر۔ ہمارے آپ نمائندے الیکٹ نمائندوں سے پوچھ لیں جس کے جو آئین و قانون میں اختیار وہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ پانی، بجلی، گیس 3 ایشوز ہیں۔ پانی جب سسٹم میں اویلیبل ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، گیس اور بجلی دونوں وفاق کے ایشوز ہیں۔ بجلی پہ ہم چلا کے تھک گئے ہیں، گیس چلا کے تھک گئے ہیں۔ فاروق ستار اور علی خورشیدی کو کہتا ہوں 2 کلیجیاں اور کھا لیں، کراچی ان کے والد صاحب کا نہیں۔ میں کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں سازش کرنے والے ناکام تھے اور رہیں گے، ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علی خورشیدی صاحب دونوں بھائیوں کو میری طرف سے 2 کلیجیاں اور کھا لیجیے۔ بڑا چھوٹا سا جواب ہے، یہ کراچی ان کے والد صاحب کا نہیں، کراچی ہم سب کا ہے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں، نہ وہ ماضی میں کامیاب ہوئے
ना आज इंशाल्लाह कामयाब होंगे। 5 दिन के तकरीबन चैलेंज में आलाइशों को जो उठाने का प्रोसेस है, तकरीबन 105 कलेक्शन सेंटर्स सॉलिड वेस्ट इंतज़ामिया ने लगाए हैं। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इन 3 रोज़ में बिलखुसूस रोज़ अगेन तमाम इंतज़ामिया जो है वो हरकत में होगी। हमने सॉलिड वेस्ट ने अपनी हेल्पलाइन 1128 112 हमने अवेलेबल की हुई है। शहरी को कोई परेशानी है वो इस नंबर पर कॉल करके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करा सकता है। कराची में सराय की सूरत हाल बदतरीन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 43 अरब बजट के बावजूद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। ये करप्शन के अलावा कुछ नहीं। सिंध हुकूमत 18 साल में सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं बना सकी। मेयर को शहर में पानी का बहरान नजर नहीं आ रहा। सेहत और सफाई की सूरत हाल है शहर कराची में बदतरीन है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। 43 अरब रुपए का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बजट है। इस बजट से शहर साफ नहीं होता। शहरियों को तो अपना रोजमर्रा का कचरा उठाने के भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो ये करप्शन है और करप्शन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आलाइशें उठाने का पूरा एक जबरदस्त निजाम होना चाहिए। मेयर साहब हो या सिंध हुकूमत हो, 18 साल में सफाई सुथराई का निजाम बना सके। इस वक्त शहर में पानी का शदीद तरीन बहरान है। काबिज मेयर फरमा रहे थे कि पानी का तो कोई मसला ही नहीं है शहर में जरा घूमे फिरें और देखें। आधे से ज्यादा शहर को पानी नहीं मिल रहा। हर दफा ये कह देते हैं ईद से पहले कि वो धाबे जी की लाइन टूट गई है। कब वो सिस्टम बनेगा जिसके नतीजे में लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा? इनके साथ ज़ाहिर एमक्यूएम की हुकूमत हमेशा रहती है और बेवकूफ़ बनाने के लिए बाज़-औक़ात सिंध असेंबली में लड़ते हैं। इनसे जान छुड़ाने की जो बड़ी तहरीक है। वतन अजीज पर जान देने वाले सिपाही अताउर रहमान शहीद के अहल खाना आज उनके बगैर ईद मना रहे हैं। आंखों में दर्द लिए शहीद की वालिदा दूसरे बेटे को भी मादरे वतन पर कुर्बान करने के जज्बे से सरशार है। मिर्जा अहमद अली की रिपोर्ट देखिए। जिला खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले सिपाही अताउर रहमान शहीद ने डेरा इस्माइल खान में फितनातुल खारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद के वालिद और भाई कहते हैं ईद और मार का हक की फतह की खुशी भी है और भाई के न होने का दुख भी। मेरा बेटा अताउर रहमान मुल्क दी खाते लड़दे हैं शहीद है। खुशी है कि मार का हक के सानू कामयाबी मिली। हमारी पहली ईद है। भाई की कमी तो बहुत महसूस हो रही है। इस बात पर फख्र है कि मार का हक की फतह हमें नसीब हुई। शहीद अताउर रहमान की हमशीरा कहती हैं भाई ने सीने पर गोलियां खाकर फितनातुल खारिज के खिलाफ वाजे पाकिस्तान की कामयाबी और मार्का हक की फतह में किरदार अदा किया, जबकि वालदा अपने दूसरे बेटे को भी वतन अजीज पर कुर्बान करने के जज्बा से सरशार है। मेरे भाई पूरे वतन की बहनों का साया बन गया। अपने शोहदा पर फख्र है जिनकी वजह से मार्का हक में फतह मिली। आज तो दिन मैंने कमी महसूस होती पई बेटे, लेकिन उसकी शहादत तो मैंने फखर जरूरत पड़ी था मैं वतन दे खातिर दूसरा बेटा भी कुर्बान कर दे। शहीद सिपाही अताउर रहमान जैसे बहादुर शोहदा अपने वालदैन, बहन भाइयों और पूरे वतन अजीज के लिए बाइसे फख्र हैं। खुशियां ईद की हों या मार्का हक की फतह की, वतन अजीज की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज़, मुल्तान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इस्लाहात, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में फ़ाल शमूलियत और खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। ईरान ने हमेशा सिफारतकारी के उसूलों और मुआहिदों की पासदारी की है। वक्त आ गया है दूसरा फरीक भी अपने कौल फेल से बैनुल अक़वामी वादों की पासदारी करे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा आल सानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू, अमन के लिए दोहा के तामीरी किरदार और हिमायत पर कतरी अमीर का शुक्रिया अदा किया। बाज़ारान इनकलाब का कहना है गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से मज़ीद 25 जहाज़ गुजरे हैं। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ये जहाज़ ईरान की इजाज़त से ईरानी बहरिया की निगरानी में गुजरे। होगा नॉन स्टॉप फन। ARY न्यूज़ पर होगी बड़ी ईद पर तीनों दिन बड़ी एंटरटेनमेंट। हर बार की तरह इस बार भी होगी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम की भरमार। बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो में होगी आपकी पसंदीदा शख्सियात से मुलाकात।
बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सियासतदान इलेक्शन से पहले वादा करके गायब हो जाता है। सर आपको देख के ना थथा हो गया हूँ जरा। कंबल आदमी आप हैं। बड़ी ईद, बड़ी मस्तियाँ, बड़ी खुशियाँ, सितारों से सजी बड़ी ईद की बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ ARY न्यूज़ पर। बाखबर सवेरा ईद उल अज़हा स्पेशल के साथ ईद के 3 दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे वसीम बादामी के तीखे और मसालेदार मासूमाना सवालात फहद मुस्तफा के साथ मामिया एंड फरहान। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन आएगा हंसी का तूफान। प्रोग्राम होशियारियां में शोबिस सितारों के साथ। मेहंदी लगाती हैं आप? मैं भी लगाता हूँ। कहाँ? तुम्बा जो पाला बात को। आप लोग देख रहे हैं शीर खोरमा। ईद के पहले दिन आदि, अली अब्दुल्ला और मुस्तफा चौधरी करेंगे बस्तियां प्रोग्राम शीर खुरमा में, जहां बीम ईद स्पेशल, जहां होंगी जानवरों की वायरल वीडियोस, दिलचस्प मनाजिर और पाकिस्तान में नामवर म्यूजिक बैंड के टूटने की कहानियां। शाम 5:03 पे मैन ऑफ क्राइसिस जावेद मियाँदार और स्विंग के बादशाह वसीम अकरम की जिंदगी पर खुसूसी प्रोग्राम देखिए शाम 5:30 पर नजीबुल हसनैन के साथ। ऑप्स का भी ये तमाम किया, ये चाहते हैं कि आप फैसलाबाद से फिट होकर जाए। खुसूसी ईद प्रोग्राम, हमारे मेहमान में होगी मुलाकात फैसल कुरैशी और सियासतदान आबिद शेर अली की मेजबान अमर खान के साथ शाम 7:03 पे ईद के पहले और दूसरे दिन। की सियासत, मुल्क की क्रिकेट या कराची की सड़कें ज्यादा खराब किया है। रात 8 बजे उठेगा हंसी का तूफान और होंगे शिकार पाकिस्तान के नामवर सियासतदान और अदाकार वसीम बादामी के मासूमाना और शायराना सवालात का ईद के पहले और दूसरे दिन। रात 10 बजे प्रोग्राम खबर में मोहम्मद मालिक देंगे अंदर की खबर ख्वाजा आसिफ के साथ और उठाएंगे सवाल पाकिस्तानी क्रिकेट के जवाल पर। ईद के तीनों दिन रात 11 बजे प्रोग्राम होशियारियां में मचेगा हल्ला गुल्ला, शोर शराबा और होगा मस्ती भरा हंगामा अदाकारा रीमा खान और वसीम अब्बास के साथ। वेरी वार्म वेलकम टू एतराज है ईद स्पेशल। ईद के तीसरे दिन लगेगी शोबिस, सहाफत, स्पोर्ट्स और सियासी खवातीन की बैठक। प्रोग्राम एतराज है में अनिका निसार के साथ रात 10:03 पे।